Okay, now 16th question. Till 15 it is clear. Now let's start with 16. The sum of the three integers in AP is 15 and their product is 80. The integers are, so here in this question क्या पूछा गया है? The sum of three integers in AP is 15. यानी three integers को add करके sum करके 15 आना चाहिए और their product is 80. और उसी three integers को multiply करके 80 आना चाहिए. Okay? So which will be that three numbers? This is the question which is asked. Okay? So now let's see. फर्स्ट ऑफ ऑल तीन इंटीजर्स को ऐड करके हमें 15 चाहिए और उसी तीन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके हमें 80 चाहिए. ठीक है. सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, हम आंसर्स को ही लेके सॉल्व करेंगे, यानी वी विल चेक द आंसर इटसेल्फ. ओके. सो फर्स्ट आंसर ऑप्शन विच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक इज 2, 8, 5 and the B option is 8, 2, 5 and C option is 2, 5, 8. Yes. So now see the first option, that is A, 2, 8, 5. Now is this an AP? First we have to check whether it is an AP or not, and afterwards we have to check the option that is addition is 15 and multiplication is 80. So just see when it is called as AP, when the common difference is same, right? So here when we 5 minus 8, how much it will be? 5 minus 8 minus 3, 8 minus 2, how much? It would be 6, right? Yes. So the common difference is same? No. So it is not an AP. And if it is not an AP, we can't check these two options. Okay. So this is wrong. Next, let's see the B option. Here also see 8, 2, 5. Now 5 minus 2 is 3 and 2 minus 8 is minus 6. So again here the common difference is not same. So it is also not applicable. Now the C option. So C option is 8, 2, 5, 8. Now here 8 minus 5 is 3 and 5 minus 2 is 3. Okay. So the common difference is same. Yes. So if it is an AP, now we have to check this 2. Whether the addition of these three 15 आता है कि नहीं and whether the product 80 आता है कि नहीं. Okay. So 2 plus 5 plus 8 15 and 2 into 5 into 8 is 80. Yes. So this option is correct option. Now let's check the D option also. So 8, 5, 2. So 2 minus 5 is minus 3 and 5 minus 8 is minus 3. So again here also the common difference is same, minus 3. So now this 2 we have to check them. So 8 plus 5 plus 2 is 15 and 8 into 5 into 2 is 80. So this is also the correct option. So in this question your C and D both is the correct answer. Okay. So your answer is C and D. Copy. Okay. Now 17th question. The sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n. The series is, so now in this question क्या पूछा गया है? The sum of n terms. Sum पूछा गया है n terms of an AP is 3n square plus 5n. So आपको एक इक्वेशन यानी कि tn की वैल्यू दी गई है जो कि है 3n square plus 5n. Yes? या और हमें क्या फाइंड करना है? सीरीज फाइंड करना है. सेम में हमें उनकी सीरीज बतानी कि सीरीज कौन सी होगी, जो सीरीज है वो क्या है. तो यहाँ पे हमें दिया क्या गया है? Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया गया है. यस. नाउ इस क्वेश्चन में हमने ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी किया है, लाइक 14th क्वेश्चन, सॉरी लाइक 10th क्वेश्चन. या 10th क्वेश्चन में सी देन nth टर्म ऑफ द सीरीज हुज सम टू n टर्म इज 5n स्क्वायर प्लस 2n. तो सेम पे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. और शॉर्ट में अगर करना है तो हम यहाँ इस क्वेश्चन में भी हम ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, यानी आपको जो A B C D ऑप्शंस दिए हैं उनको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं. ओके. तो कैसे, चलो देखते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट आपका A ऑप्शन
सबसे पहले तो हमें T1 फाइंड कर लेते हैं। तो T1 इज इक्वल टू S1 एज वी ऑल नो कि T1 S1 A तीनों भी सेम होते हैं। तो यहाँ पर हम T1 1 डाल देते हैं n की वैल्यू। तो 3 इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 3 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो हमारा A और T1 या S1 जो है वो 8 आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है ना वो हमें 8 चाहिए। ओके, नाउ चेक द ऑप्शंस। तो A ऑप्शन में 8 है फर्स्ट टर्म, B ऑप्शन में भी 8 है फर्स्ट टर्म, C ऑप्शन में 22 है। तो C ऑप्शन में 22 है बट हमारा A तो 8 है। तो यहाँ पर ये पहले ही स्टेप में ये मतलब हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ये तो क्लियर है। और D जो है वो नन ऑफ दिस है, तो ये भी तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें A तो मिला है 8, करेक्ट। तो A या B इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है। अब द सेकेंड स्टेप इज कि हम इनमें से क्या फाइंड करें, कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। जिसका भी कॉमन डिफरेंस निकलेगा वो हमारा AP होगा एंड दैट वुड बी अवर आंसर ऑल्सो, वही हमारा सीरीज भी होगा। ओके, तो हम यहाँ से चेक करते हैं। तो 26 माइनस 20 6 आता है, 20 माइनस 14 6 आता है, 14 माइनस 8 6 आता है, करेक्ट। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा है 6, करेक्ट। तो ये तो है। ओके, बी भी चेक कर लेते हैं। 68 माइनस 42 क्या आता है, 68 माइनस 42 सी चेक करो। 68 माइनस 42, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 4 2, 26 आ रहा है। नेक्स्ट 42 माइनस 22, सो 42 माइनस 22, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 20 आ रहा है। तो फर्स्ट में 26 आया और अभी 20 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, मीन्स दिस इज नॉट एन AP। अगर ये AP ही नहीं है तो सीरीज इज नॉट एन AP, तो मीन्स बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सिंपल दैट इज A। तो A हमारी सीरीज है। ओके, A हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, कॉपी। Okay, now 18th question. See 18th question, the number of numbers between 74 and 25,556 divisible by 5 is. So इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन व्हाट 74 एंड 25,556 के बीच का नंबर फाइंड करना है आपको, जो कि 5 से डिविजिबल है। डिविजिबल मतलब 5 से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उन दो टर्म के बीच का नंबर फाइंड करना है। किन दो टर्म के बीच का नंबर, 74 टू 25,556 के बीच का नंबर जो कि डिविजिबल बाय 5 है। ओके, तो मीन्स आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे ये बीच के नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम हमारा जो बीच का नेक्स्ट नंबर है 74 के बाद का जो नंबर है दैट इज 75, नेक्स्ट नंबर आएगा 80, नेक्स्ट नंबर आएगा 85। अब ऐसा क्यों आया, क्योंकि 75 के बाद तो 76 आता है, बट 76 डिविजिबल 5 है क्या, नहीं है। 76 के बाद 77 आता है, बट वो भी डिविजिबल 5 है क्या, नहीं। सो 75 के बाद डायरेक्ट 80 आता है और 80 के बाद डायरेक्ट 85 एंड सो ऑन टिल 25,555। ओके, तो इनके ये बीच के नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। ओके, तो लेट्स, तो हमें A तो मिल गया अभी, हमारा फर्स्ट टर्म है 75। ओके, यस, फर्स्ट टर्म है हमारा 75। D, नाउ डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होगा हमारा T2 माइनस T1, सो दैट इज 80 माइनस 75, तो 5। तो 5 हमारा डिफरेंस है और A हमारा 75 है। सो दिस मच इज क्लियर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, Tn इज गिवन टू यू, द लास्ट टर्म, दैट इज द लास्ट टर्म। हमारा Tn होता है हमेशा लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, हमारा Tn होता है। तो Tn यहाँ पे है 25,555, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे कि हमें n मिल जाएगा। ओके, तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो Tn की वैल्यू तो हमारे पास है 25,555 इज इक्वल टू A 75 प्लस n माइनस 1 इंटू D, D इज हमारा 5। ओके, नाउ 25,555, दिस 75 जब इस साइड आ जाएगा तो माइनस 75 हो गया, इज इक्वल टू, ये हम ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड वी विल मल्टीप्लाई, सो 5 इंटू n 5n एंड 5 इंटू माइनस 1 इज माइनस 5, ठीक है। तो अब ये माइनस करके हमारा आया 25,480 या, और यहाँ पे हमारा हो गया 5n माइनस 5 एज इट इज। अब
ये -5 अगेन वी विल टेक दिस साइड, इस साइड जब वो आ जाता है तो वो +5 हो जाएगा, और तो फिर क्या हो गया 25,480 + 5 इज इक्वल टू 5n। नाउ जब हम इसको ऐड कर देंगे तो 25,485 हो गया इज इक्वल टू 5n। सो आवर n टर्म इज 25,485 डिवाइड बाय 5, तो हमारा आंसर आता है 5097। तो हमारा ऑप्शन है बी। ओके 5097, और ये टेक्स्ट बुक में इसका आंसर बी में, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके कॉपी। Okay, now question number 19. See question number 19. The pth term of an AP is 3p minus 1 whole divided by 6. The sum of the first n terms of the AP is, तो sum of the first n terms means क्या फाइंड करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे Sn फाइंड करने के लिए कहा गया है, और हमें दिया क्या है, दिया द टर्म ऑफ P, P टर्म राइट। तो TP इज इक्वल टू 3p माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 6, ये हमें दिया गया है, और Sn हमें फाइंड करने के लिए पूछा गया। ओके, तो सबसे पहले और कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है राइट, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड T1, हमें T1 फाइंड करना है, और T1 हम कैसे फाइंड करते हैं, तो सपोज हम N1 लेते हैं राइट। तो अगर हम N1 ले रहे हैं और उस 1 को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं राइट, तो 3 1 P के जगह पे हम 1 लेंगे, तो 3 into 1 minus 1 whole divided by 6, तो 3 minus 1 is upon 6, तो that is 2 upon 6। तो हमें हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज T1 और A इज इक्वल टू 2 upon 6 मिल गया। ओके, अब T2 फाइंड करते हैं, तो T2 में हम क्या करेंगे, नाउ हम P सपोज करेंगे कि 2 है, तो 3 into 2 minus 1 whole divided by 6, तो इज इक्वल टू 3 to the 6 minus 1 whole divided by 6 is equal to 6 minus 1 5 upon 6 आ गया। ओके, तो अभी हमारा T1 हमारे पास है, हमारा T2 भी हमारे पास है। अब जब T2 और T1 हमारे पास है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड D राइट, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो इज इक्वल टू 5 upon 6 माइनस 2 upon 6, तो सॉल्व करके हमें मिलता है 3 upon 6। ओके, अब हमारे पास A है, हमारे पास D है। नाउ क्या हम Sn फाइंड कर सकते हैं, यस हम Sn डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं। तो Sn का फॉर्मूला डालते हैं। ओके, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो n अपॉन 2, n हमें पता है कितना है, नहीं पता, n टर्म नहीं दिया गया है तो हम उसे n ही लेंगे। ओके, तो n अपॉन 2 और 2 इंटू a वैल्यू इज 2 अपॉन 6 प्लस n माइनस 1, d वैल्यू इज 3 अपॉन 6। ओके, नाउ n अपॉन 2 एज इट इज, 2 2s are 4 अपॉन 6 प्लस इस ब्रैकेट को हमने ओपन किया तो 3 अपॉन 6 इससे मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो 3 इंटू n 3n, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 6। ओके, क्लियर यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट n अपॉन 2, दिस सी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 6 राइट, दोनों का डिनोमिनेटर 6 है करेक्ट, कॉमन डिनोमिनेटर 6 है, तो हम 6 डिनोमिनेटर कॉमन लेते हैं और दोनों टर्म्स को न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं, 4 प्लस 3n माइनस 3। ओके, नाउ n अपॉन 2, दिस नंबर सी 4 माइनस 3 हमारा प्लस 1 बचा और 3n, तो 3n प्लस 1 हमारे पास बचा है अपॉन 6। नाउ दिस 2 डिनोमिनेटर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 6, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई होगा राइट, तो 2 इंटू 6 12 और n इंटू 3n प्लस 1। सो दिस, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन बी। ओके राइट, हो गया। ओके, नाउ 20th क्वेश्चन, सी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 33 and 77 इज सिंपल। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 33 and 77? आपको दो सिर्फ नंबर्स दिए गए, एक 33 है और एक 77। ओके, सो हम उसको सपोज करते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 33 एंड c इज इक्वल टू 77। अब a के बाद b आता है राइट, बट मैंने c 77 क्यों लिया है, क्योंकि a और c के बीच में b आता है और हमें वही फाइंड करना है करेक्ट। तो a मैंने 33 लिया है और c मैंने 77 लिया है। सो नाउ 33 और 77 के बीच का नंबर दैट इज b वी हैव टू फाइंड। ओके, सो a 33, b हमें नहीं पता एंड c इज 77।
अब ए बी सी, जब ए बी सी अरिथमेटिक मीन है, ए पी है, तो हमें पता है कि उसका फॉर्मूला है ए बी सी का, राइट, हमने पहले देखा है। तो फॉर्मूला क्या है, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू, करेक्ट। तो हम इसमें उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बी इज इक्वल टू ए दैट इज 33 प्लस सी दैट इज 77 होल डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। नाउ 33 प्लस 77 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें आंसर बी का वैल्यू मिल रहा है 55, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ओके, सो बी इज 55। Okay, now question number 21. See, the four arithmetic mean between -2 and 23 are. So now in this question also हमें क्या फाइंड करना है, फोर arithmetic mean फाइंड करना है, ठीक है। सेम एज पीछे हमने किया था, कहीं तो या क्वेश्चन नंबर 15 में द टू arithmetic mean between -6 and 14, सेम वे में हमें यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, जस्ट डिफरेंस इज वहाँ पे टू अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था, यहाँ पे हमें फोर अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टर्म आपको दिया है -2, फिर हम फोर अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो हम उसको लिखेंगे A1 A2 A3 A4, और जो सेकेंड नंबर जो हमें दिया है वो है 23, जिसे हम B सपोज करेंगे। ओके, अब A तो हमारे पास है -2, ठीक है, हमें अभी D चाहिए, करेक्ट। अरिथमेटिक फाइंड करने के लिए हमें D चाहिए। अब D कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हम वहाँ पे D का एक नया फॉर्मूला है जो कि है B माइनस ए होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1, करेक्ट। तो यहाँ पे B हमारा 23 है, माइनस A का वैल्यू -2 है, तो 23 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, तो 23 प्लस 2 25, और n क्या आएगा यहाँ पे, n मैंने कहा था आपको जितने अरिथमेटिक मीन हमें फाइंड करने हैं वो हमारा n होता है। तो यहाँ पे हमें कितने अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं, 1 2 3 4, फोर अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं, तो हमारा n जो है वो हो गया 4। ओके, सो 4 प्लस 1 दैट इज 5। नाउ 25 डिवाइड बाय 5 वी विल गेट 5, सो हमारा d हो गया 5, ठीक है। अब सिंपल, अब हम A1 A2 A3 A4 बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो A1 हम कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस डी, A1 फाइंड करेंगे A प्लस डी करके, तो -2 प्लस 5 तो 3 आ गया। A2 कैसे मिलेगा हमें, A1 प्लस डी, जो A1 हमने फाइंड किया उसमें हम D ऐड कर देंगे, करेक्ट। सो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, अब हमारा A2 आ गया 8। नाउ A3 कैसे फाइंड करेंगे, A2 प्लस डी, ओके, तो A2 प्लस डी इज इक्वल टू 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13, करेक्ट। नाउ A3 आ गया 13। नाउ A4 कैसे फाइंड करेंगे, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी, तो A3 हमारा 13 प्लस डी हमारा 5 इज इक्वल टू 13 प्लस 5 इज 18, तो हमारा A4 आ गया 18। सो द फोर अरिथमेटिक मीन हमारे पास हो गया 3, 8, 13, 18, जो कि हमारा ऑप्शन सी। ओके, सो राइट, क्विक क्विक। So let's move to question number 22. Okay, the first term। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और लिटिल बिट ट्रिकी भी है, ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 14। आपको सबसे पहले उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टर्म AP का फर्स्ट टर्म जो है ना वो 14 है, यानी आपका A और T1 14 दी है। ओके, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मीन्स क्या होता है, S5, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यानी कि S5 एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल, और फर्स्ट 10 टर्म्स यानी S10, तो S5 और S10 के बीच में हमें कुछ रिलेशन बता रहे हैं। सी क्या रिलेशन है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स S5 एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स S10 आर इक्वल इज मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, ठीक है, ध्यान से सुनो, ऑपोजिट इन साइन मींस S5 और S10 इक्वल तो है लेकिन ऑपोजिट इन साइन। तो इसका क्या मतलब होता है कि, ठीक है, हम देखते हैं बाद में, और हमें फाइंड क्या करना है, द थर्ड टर्म ऑफ द APS, तो हमें थर्ड टर्म इन सिंपल वर्ड्स T3 फाइंड करना है, ठीक है। तो T3 यानी कि TN फाइंड करना है, तो TN तो हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे A तो है लेकिन D है क्या, नहीं। तो अगर हमें D फाइंड करना है तो हमें जो उन्होंने कहा है इक्वल है S5 इज इक्वल टू S10, उससे हमें कुछ सॉल्व करना है और D फाइंड करना है, और देन D को हम पुट करेंगे TN के फॉर्मूले में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
सो फर्स्ट हम गिवन लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 14 दिया है हमें। अब जो इन दोनों के बीच में इक्वालिटी दी है ना, बट ऑपोजिट इन साइन का है, यानी S5 इज इक्वल टू माइनस S10। जो S5 है उसका ऑपोजिट साइन हमारा S10, तो माइनस S10। क्लियर ये, राइट? ऑपोजिट का है बट इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट इन साइन है, तो S5 इज इक्वल टू माइनस S10। और हमें फाइंड क्या करना है? T3, करेक्ट? नाउ सी इन सिंपल Sn का फॉर्मूला हमें लगाना है, क्योंकि Sn दिया है, मतलब S5 एंड S10 हमारे पास है, तो सिंपल में हमें Sn का फॉर्मूला लगाना है, करेक्ट? तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट? नाउ Sn यानी S5 हमारे पास है, तो हम S5 का फॉर्मूला डालेंगे, यानी n की वैल्यू हम 5 डालेंगे, ओके? तो 5 अपॉन 2 इंटू 14 जो हमारा a है, प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है नहीं है, तो हम उसको डी ही रखेंगे, ओके? इज इक्वल टू, अब माइनस साइन आएगा तो माइनस 10 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे हमारा n क्या है? 10 है, ओके? तो 10 अपॉन 2 इंटू 14 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? नाउ दिस 2 एंड दिस 2 गॉट कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, ओके? कैंसिल हो गया, बचा क्या? 5, 2 इंटू 14 28 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू डी 4d, ओके? इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा माइनस 10, सेम 2 इंटू 14 28 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी 9d। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 और इसके बीच में क्या रिलेशन है? मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, करेक्ट? अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, तो ये 5 जब इस साइड चला जाएगा, इक्वल टू के उस साइड जाएगा, तो वो डिवाइड हो जाएगा, यस? तो जब डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 10 अपॉन 5 आया, और जो बाकी का जो है 28 प्लस 4d वो हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, ओके? नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम होता है, जस्ट हमने 5 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, 28 प्लस 4d इज इक्वल टू 5 डिवाइड करेंगे माइनस 10 से, तो माइनस 2 आया, बाकी का सेम लिखा। नाउ 28 प्लस 4d इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो माइनस 2 इंटू 28 माइनस 56, और माइनस 2 इंटू 9d इज माइनस 18d, करेक्ट? नाउ नेक्स्ट स्टेप, हम जो d वाले जो नंबर्स है वो एक साइड लेके आते हैं, और जो नंबर्स है उसको हम एक साइड लेके आते हैं, तो 4d प्लस 18d इज 18 प्लस कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो इस साइड आया तो वो प्लस हो गया, ठीक है? इज इक्वल टू माइनस 56 एंड प्लस 28 इस साइड चला गया तो माइनस 28 हो गया। ना 4d प्लस 18d इज 22d एंड माइनस 56 माइनस 28 इज माइनस 84, ओके? तो 22d इज इक्वल टू माइनस 84, तो d इज इक्वल टू माइनस 84 डिवाइड बाय 22, तो कैंसिल करके हमारा आंसर आ रहा है माइनस 42 डिवाइड बाय 11। तो अभी हम इस क्वेश्चन में फिलहाल सिर्फ d फाइंड किया है हमने, बट हमें एक्चुअली d नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली t3 फाइंड करना है, बट t3 फाइंड करने के लिए हमें d चाहिए, ओके? तो d तक तो पहुंच गए। अब नेक्स्ट सिंपल हम tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, तो t3 इज इक्वल टू 14 प्लस n के प्लेस में हम 3 लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारा माइनस 42 अपॉन 11 है। सो नाउ लेट्स सॉल्व, तो 14 प्लस 3 माइनस 1 इज 2 इंटू माइनस 42 अपॉन 11, तो जब इसको हम करेंगे ना 2 इंटू माइनस 42 अपॉन 11, तो हमें मिलता है माइनस 84 अपॉन 11, सो हमारा आया 14 माइनस 84 अपॉन 11। अब क्योंकि थोड़ा सा बाकी तो मैं यहाँ पे साइड में कर रही हूँ, सी आई होप समझ में आएगा। सो 154 हम अभी क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को कॉमन कर रहे हैं, 11 था डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को हम कॉमन कर रहे हैं, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है, सो हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, यस? तो 14 इंटू 11 करेंगे, तो 14 इंटू 11 154 आया, माइनस यहाँ पे 84 है और डिनोमिनेटर 11 है, तो हमें यहाँ पे न्यूमरेटर को 11 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट माइनस 84 लिखेंगे, ओके? होल डिवाइडेड बाय 11, सो 154 माइनस 84 इज इक्वल टू 70 अपॉन 11 आ गया, ठीक है? तो 70 अपॉन 11 को हम डिवाइड करके देखेंगे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम उसको दिखाएंगे 6 अपॉन 11, क्यों? क्योंकि आपका जो ऑप्शन जो आंसर दिया है टेक्स्ट बुक में वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 6 अपॉन 11 इज योर आंसर विच इज A option, okay? So just copy it fast. Okay, now question number 23. Hope कि 22 तक आपको clear होगा questions. Okay, now question number 23. The sum of a certain numbers of
terms of an AP series -8, -6, -4 डॉट 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 इज 52। अब यहाँ पे क्या दिया है आपको, द सम दिया गया है, यानी SN की वैल्यू आपको 52 दी गई है और AP की सीरीज दी गई है, ओके, -8, -6, -4, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है आपको, द नंबर ऑफ टर्म यानी n हमें फाइंड करना है। क्लियर, क्वेश्चन इज क्लियर। सी, हमें सम दिया गया है यानी SN की वैल्यू 52 कहा गया है और सीरीज भी आपको दिया है और आपसे क्या फाइंड करने के कहा गया है कि n फाइंड करो, ओके, नंबर फाइंड करो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सीरीज से सबसे पहले हमें तो a की वैल्यू मिलती है, a इज इक्वल टू -8 और d की वैल्यू मिलती है जो कि t2 - t1 तो 2, ओके। अब हम, क्योंकि हमें SN की वैल्यू दी गई है तो हम SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। तो SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ पर अभी SN की वैल्यू 52 है तो हमने SN की वैल्यू ले ली 52 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2 इंटू -8 प्लस n-1 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज, ओके। सो 52 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू -8 -16 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 इंटू n 2n -1 इंटू 2 -2, करेक्ट। नाउ 52 इज इक्वल टू n/2 -16 -2 -18 हो गया और ये 2n प्लस 2n, सो प्लस 2n -18। नाउ 52 इज इक्वल टू n/2 तो है यहाँ पे। अब इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक 2 एज कॉमन नंबर, यस। तो मैंने 2 बाहर ले लिया, जब मैंने 2 बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से n बचा और यहाँ से 9 बचा, यस, क्योंकि 9 2 से 18 होता है, वो 2 मैंने बाहर ले लिया, करेक्ट। नाउ दिस टू गॉट कैंसिल, 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या है, n इंटू n-9 इज इक्वल टू 52, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है, यही बचा है हमारा n इंटू n-9 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 52, करेक्ट। इसके बाद अगर हम सॉल्व करने जाए तो फिर से बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर, सो इसलिए हम यहाँ पे शॉर्टकट अपनाएंगे। शॉर्टकट क्या है कि हम जो ऑप्शंस हमें दिए गए आंसर्स उसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स चेक, तो B इसका करेक्ट आंसर है तो मैं डायरेक्टली B का वैल्यू जो कि है 13 वो सब्स्टिट्यूट करके देख रही हूँ, ठीक है। तो जब हम B सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, सो B का वैल्यू 13 है, तो 13 ब्रैकेट ओपन 13 -9 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 52। So 13 - 9 is 4 and 13 into 4 is 52. So 52 is equal to 52. So हमारा आंसर B जो है, ऑप्शन B जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ओके। अगर फॉर एग्जांपल आप A ऑप्शन डाल के देखोगे जो कि है 12, करेक्ट। A ऑप्शन हमारा 12 है, यस। तो अगर आप यहाँ पे 12 डालोगे तो 12 ब्रैकेट 12 - 9 इज इक्वल टू 52 आ जाएगा और 12 - 9 कितना होता है, 3। तो 13 इंटू 3 आ जाएगा, सॉरी 12 इंटू 3 आ जाए, 12 इंटू 3 आ जाएगा जो कि है कितना होता है, 12 3 से 36, यस 36। तो 36 इज इक्वल 52 है क्या, नहीं है। सो ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ओके। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर -4 and 146। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है यानी A आपको दिया है -4 एंड लास्ट टर्म दिया है 146। लास्ट टर्म यानी TN आपको दिया गया है 146, ठीक है, करेक्ट। लास्ट टर्म हमेशा TN होता है, मैंने आपको पहले भी कहा है। सो यहाँ पे A इज इक्वल टू -4 और लास्ट टर्म TN इज इक्वल टू आपको दिया गया 146। आगे पढ़ते हैं, द सम ऑफ द टर्म्स इज 7171। द सम ऑफ द टर्म मीन्स SN। अगेन आई एम सेइंग सम जहाँ पर भी होता है मीन्स SN, ओके। तो SN आपको दिया गया है 7171, ओके, 7171, ओके। अब देखते हैं फाइंड क्या करना है। द नंबर ऑफ टर्म इज, अगेन n हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो n फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, सी TN हमें दिया और SN हमें दिया, तो सबसे पहले TN दिया है तो TN का फॉर्मूला यूज करते हैं, यस। तो TN का फॉर्मूला TN इज इक्वल टू A प्लस n-1d। सो TN की वैल्यू हमारे पास है 146, तो 146 हमने डाला इज इक्वल टू A की वैल्यू -4 प्लस n-1 इंटू D। हम D ही रख रहे हैं क्योंकि D की वैल्यू हमें नहीं पता है, ओके, और ना ही n की वैल्यू पता है, तो n भी हम n ही रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, सो 146 -4 इस साइड आ गया तो +4 हो गया इज इक्वल टू n-1 इंटू D। सेम ये ऐसे कैसे उतारेंगे, सो 146 + 4 इज 150 इज इक्वल टू n-1 इंटू D। हम इसे लेट इक्वेशन 1 सपोज करते हैं, ओके। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन।
नाउ नेक्स्ट हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, एस एन की वैल्यू हमारे पास है तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, तो जब हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी, करेक्ट। तो एस एन की वैल्यू हमारे पास है 7171 इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू भी है -4 प्लस सी दिस n माइनस वन इंटू डी। इसको देख के कुछ याद आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन हमने कुछ फाइंड किया था, n माइनस वन डी की वैल्यू यस 150, करेक्ट। तो डायरेक्ट हम n माइनस वन डी की वैल्यू इंटू डी की वैल्यू 150 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। क्लियर, ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने फाइंड किया था 150 आया था, वो हमने इधर डायरेक्टली 150 डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा पूरे का पूरा हट गया और यहाँ पे 150 आ गया। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, यस। तो 7171 इज इक्वल टू एन अपॉन टू फोर जा -8 प्लस 150। सॉल्व करेंगे तो 7171 इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू 150 में से -8 गया तो 142 आया। अब कैंसिल किया मैंने 2 से 142 तो मेरा 71 आ गया। ओके, सो मेरा यहाँ पे क्या बच रहा है, अगेन इस साइड में थोड़ा सा ही बाकी, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 7171 इज इक्वल टू 71 एन आ रहा है, करेक्ट। हमने यहाँ पे कैंसिल किया था 2 के टेबल में 142 71 से आ रहा है तो हमारा बचा 71 एन। सो नाउ एन इज इक्वल टू 7171 अपॉन 71 जो कि आ रहा है एन की वैल्यू 101, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। सो योर करेक्ट आंसर इज या करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, राइट। Okay, now the last question, the sum of the series 3 1 upon 2 plus 7 plus 10 1 upon 2 plus 14 plus dot 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 up to up to 17 टर्म इज। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टर्म फाइंड करना है, तो सम फाइंड करना है, एक्चुअली द सम ऑफ द सीरीज फाइंड करनी है, करेक्ट। तो सम ऑफ द सीरीज मीन्स एस एन फाइंड करना है हमें, यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, इज 2, करेक्ट, या। और n हमें दिया है टू 17 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है, ठीक है, 17 टर्म तक का सम फाइंड करना है हमें। तो एस एन फाइंड करना है, n हमें 17 दिया गया है। तो हमारा ए पी है, उससे हमें a की वैल्यू 3 1/2 दैट इज 3.5, करेक्ट। डी हम फाइंड कर सकते हैं t2 माइनस t1, तो 7 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 3.5। ए मिल गया, डी मिल गया। अब हम एस एन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यस। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन हमारे पास है 17 अपॉन टू इंटू ए हमारे पास 3.5 है, प्लस एन हमारे पास 17 माइनस 1 और डी हमारे पास 3.5 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 17 अपॉन 2, इसे हम सॉल्व करेंगे 3.5 इंटू 2 7 आ गया, 17 माइनस 1 16 आ गया, 16 इंटू 3.5 56 आ गया। नाउ 7 प्लस 56 इज 63, तो 17 अपॉन 2 इंटू 63, ठीक है। नाउ हम कैंसिल करेंगे 2 की जगह 63, 2 1 जा 2 31.5 आएगा, या हम डायरेक्टली 17 इंटू 63 डिवाइड बाई 2 करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे भी करें हमें आंसर 535.5 आ रहा है। ओके, सो 535.5 और 535 1/2 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। सो ये हमारा एस एन का वैल्यू हो गया। ओके, एस एन वैल्यू इज 535.5 और 535 हाफ, ठीक है, जो कि हमारा सी ऑप्शन। सो होप आपको 6A एक्सरसाइज क्लियरली डिटेल में हर एक सम समझ में आया हो। कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, सो जस्ट प्रैक्टिस इट, मेक श्योर कि हर एक सम आपको क्लियर है। ओके, थैंक यू।